السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جو طلباء اور طالبات ہمارے پاس درس نظامی یعنی عالم کورس کر رہے ہیں، ان کو ہم منہاج العربیہ حصہ اول اور حصہ دوم پڑھا چکے ہیں، اور ہم الگ سے علم نحو اور علم صرف بھی پڑھا رہے ہیں۔ منہاج العربیہ 2 حصے پڑھانے کے بعد اب ہم ان 2 حصوں کی مشق کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جملے بولنے آئیں اور لکھے ہوں تو سمجھ میں آئیں۔ یہ ہم مشق میں جو بار بار آپ کو جملے بنانے کے لیے دے رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت زیادہ جملے بنائے جا رہے ہیں یا بار بار ایک قسم کے جملے آ رہے ہیں۔ آپ اگر زبان پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان آپ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، لکھ سکیں، بول سکیں، یا کوئی بول رہا ہو تو سمجھ سکیں، اگر آپ ایسے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بار بار جملے لکھنے ہوں گے، بار بار پڑھنے ہوں گے۔ آپ اردو زبان بولتے ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ آپ جو اردو زبان بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں، ایک ہی طرح کے جملے، ایک ہی طرح کی ترکیبیں، وہی الفاظ آپ نے 10-20 نہیں سینکڑوں بار سنے ہیں اپنے بچپن میں، تب جا کر آپ کو بولنا آ رہا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں بار آپ بول چکے ہیں، تب جا کر آپ کے زبان پہ روانی آئی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو اگر بالکل صحیح ڈھنگ سے اردو بولنے کے لیے بٹھایا جائے تو شاید آپ سے چند غلطیاں تب بھی ہوں گی۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ کی اپنی زبان ہے جس کو آپ روز صبح شام سنتے ہیں، سینکڑوں جملے دن بھر میں بولتے ہیں، ہمیشہ وہی زبان آپ کے زبان پر جاری ہے اور کانوں میں اسی زبان کے الفاظ اور جملے آ رہے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ خامی ہے۔ تو پھر عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم کو کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ بار بار جملے بنائیں، مختلف قسم کے جملے بنائیں، اور بہت جملے بنائیں، حد کر دیں بالکل، تب جا کر آپ عربی میں ماہر بنیں گے۔ کاپیاں سیاہ کر دیجئے، اوراق کالے کر دیجئے، لکھ لکھ کر آپ بالکل سیاہی ختم کر دیجئے، بہت فائدہ ہوگا آپ کا اور آپ مضبوط ہوں گے۔ ہماری اس بات کو آپ ہلکے میں نہ لیں، بلکہ بہت تجربے کے بعد ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم آج آپ کو عربی زبان پڑھا رہے ہیں یا عربی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری کئی سالوں کی بہت محنتیں ہیں، اور قواعد، علم نحو کے قواعد، علم صرف کے قواعد اور عربی ادب کی بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، بہت ساری ترکیبیں غور کرنے کے بعد، اس کی مشق کرنے کے بعد ہم آپ کو بتانے کے قابل ہوئے ہیں اور کچھ پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہوئے، اور ہمارے مزید علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم عربی زبان میں ماہر ہو گئے ہیں، ہم بھی عربی زبان کے ابھی طالب علم ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ آپ چھوٹے طالب علم ہیں، ہم ذرا بڑے طالب علم ہیں، مگر ہیں طالب علم ہی آپ اور ہم۔ بس ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ ہم پہلے جو ٹھوکریں کھا کر آگے آ گئے ہیں، اور جو تجربے ہم کر چکے ہیں، آپ کو ان تجربوں سے ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان ٹھوکروں سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور صحیح طریقے آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو منہاج العربیہ کے 5 اسباق کی مشق ہم کرا چکے تھے۔ اب 6ویں سبق میں کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں ہے، صرف حروف جارہ کا استعمال ہے۔ یہاں پر حروف جارہ میں سے فی، علی، الی، لی، من، اتنے حروف جارہ استعمال کیے گئے، 1 2 3 4 5۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، اعلیٰ کا معنی ہے پر، الی کا معنی ہے تک، اور لی کا معنی ہے کے لیے، من کا معنی ہے سے۔ ان سب کو آپ یہاں پر اسم پر اس کو داخل کیا گیا ہے، جیسے یہاں کتاب میں مثال ہے
फिल बैती, और इसी तरह किताब में मिसाल है अलल फरसी, और भी मिसालें हैं। इनको आप इसमें इशारा पर भी दाखिल कर सकते हैं, फी हाजा, आला ज़ालिका। ज़मीर पर भी दाखिल कर सकते हैं, ज़मीर पर दाखिल करेंगे जैसे फी ही, अलैहि। आप इसमें मौसूल पर भी दाखिल कर सकते हैं, फिल लज़ी, अलल लज़ी। और अलम पर भी दाखिल कर सकते हैं, फी ज़ैदिन, अला ज़ैदिन वगैरह। इस तरह आप मश्क कर लें। तो ये हुरूफ़ जार रही, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इस सबक में नहीं है, इसलिए मैं इतनी ही हिदायत आपको देकर आगे के सबक में जा रहा हूँ। आगे है 7वां सबक। 7वें सबक में आईना और कैफा, इन दोनों का इस्तेमाल बताया गया है। आईना का माना होता है कहाँ, और कैफा का माना होता है कैसे। किताब में आप देखें, आइनल वलदु, लड़का कहाँ है। अल वलदु अलल कुर्सी, ये उसका जवाब है, लड़का कुर्सी पर है। उसके बाद आगे है कैफल वलदु, लड़का कैसा है। अल वलदु तय्यबुन, लड़का अच्छा है। आईना और कैफा का इस्तेमाल। आईना का माना है कहाँ। आईना को आप कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 हिस्से आप पढ़ चुके हैं। उन 2 हिस्सों में जिस तरह की तरकीबें आई हैं उन्हीं की रोशनी में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जो जुमले मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह जहन में बिठाएं और वैसे जुमले बना लें। ये जो किताब में दिया गया है, आइनल वलदु, लड़का कहाँ है, इसमें आईना खबर मुक़द्दम होता है और अल वलदु मुब्तदा मुअख्खर होता है। ये मुब्तदा है, ये खबर है। यहाँ पर इसमें ज़ाहिर लगा हुआ है मुअर्रफ बिल्लाम। आप यहाँ अलम भी लगा सकते हैं, आईना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। हुरूफ़े इसमें इशारा भी लगा सकते हैं, आईना हाज़ल वलदु। मैं आपके सामने किसी लड़के का तस्करा करूं तो आप पूछेंगे उसके बाद आईना हाज़ल वलदु, ये लड़का कहाँ है। इस तरीके से आईना हाज़ल वलदु, इसमें इशारा पर भी आईना आ सकता है, या इसमें ज़मीर पर भी आ सकता है। आईना अंता, आप कहाँ हैं। आईना हुआ, वो कहाँ है। आईना अंती, आप कहाँ हैं वगैरह। इसमें मौसूल पर भी लगा सकते हैं, आइनल लज़ी मरीज़ा अमसी, कल जो बीमार हुआ था वो कहाँ है। देखिए आईना के बाद अल्लज़ी आ गया। इसी तरीके से अच्छा, ये इन तमाम मिसालों में ये आईना खबर है और ये सब मुब्तदा है। आइनल वलदु ये मुब्तदा, आइना ज़ैदुन में ज़ैद मुब्तदा, आइना हाज़ल वलदु में हाज़ल वलदु मुब्तदा, आइना अंता में अंता मुब्तदा, आइनल लज़ी मरीज़ा अमसी में ये मुब्तदा है। ये खबर था। ये एक चीज़ हो गई। अब आप इस्तेमाल कर रहे थे आईना के साथ इस्म को, आप आईना के साथ फेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आईना ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ गया। इस सूरत में ये मफ़ूल फ़ी ही बनता है। आईना मफ़ूल फ़ी ही मुक़द्दम हो जाएगा, ये फेल ये फ़ाइल। आईना ज़हबा ज़ैदुन माज़ी आप लाए हैं। ऐसे ही एक और आप लाइए, आईना जलस्ता, आप कहाँ बैठे। आईना क़रअता, आपने कहाँ पढ़ा।
आईना कतबता आपने कहाँ लिखा। आईना के साथ आप फेले माजी ला सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप आईना के साथ फेले मुजारे भी ला सकते हैं। जैसे आईना तज़हबू, आप कहाँ जा रहे हैं। आईना यजलिसु ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ बैठ रहा है। आईना तक़रऊ फ़ातिमतु, फ़ातिमा कहाँ पढ़ रही है। आईना अज़हबू, मैं कहाँ जाऊं। ये सब देखिए सवाल, ये आईना, ये सब इस्तिफ़हामिया है, ये सवाल के माना में ही सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो फ़ेल मुज़ारे आप आईना के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। अब अभी तक जो हमने आईना इस्तेमाल किया उसका माना था कहाँ। अब जो आईना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका माना होगा जहाँ, और ये शर्त के माना में होगा। आईना, पहले हमने आईना को इस्तिफ़हाम के माना में इस्तेमाल किया, कहाँ यानी कहाँ है, कहाँ नहीं है वगैरह। अब ये जहाँ के माना में, जैसे देखिए इसके बाद हम दो फेल लाएंगे। आईना, आईना तजलिस अजलिस, मुजारे का सिगा जज़म के साथ लाइए। आईना तजलिस अजलिस, आप जहाँ बैठेंगे मैं वहाँ बैठूंगा। देखिए जहाँ का माना होगा इसका, और ये शर्तिया होगा, आप जहाँ बैठेंगे मैं वहाँ बैठूंगा। आईना तक़रऊ, आईना तक़रा, अक़रा जज़म से पढ़े, आप जहाँ पढ़ेंगे मैं वहाँ पढ़ूंगा। आईना तरख़ुद अरक़ुद, आप जहाँ सोएंगे मैं वहाँ सोऊंगा। इसी तरीके से आईना ताकुल आकुल, आप जहाँ खाएंगे मैं वहाँ खाऊंगा। ऐसे ही आईना तज़हब अज़हब, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगा। तो इन सब में आप आईना को इस्तेमाल कर रहे हैं। आईना के बाद दो फेले मुजारे आप लाएंगे, दो फेले मुजारे। ये मैंने जो मिसाल दी है, आप अफ़ाल बदल भी सकते हैं, आप जैसे दूसरे भी आप ला सकते हैं। यहाँ पर हमने हाजिर का सिगा और मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल किया, आप सिगे बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आईना, हाँ 1 मिनट का वक़्फ़ करें। हाँ माज़िरत। तो आईना दोनों माना में, ये पहले हमने उसको इस्तिफ़हाम के माना में इस्तेमाल किया जब उसका माना हो रहा था कहाँ, और अब हमने उसको शर्त के माना में इस्तेमाल किया जिसका माना होता है जहाँ। तो आप इस तरीके से जुमले सोच सोच कर बना लें। अब हम आते हैं कैफा पर। कैफा का माना होता है ये हालत दरियाफ्त करने के लिए, किस हाल में या कैसे। अब किताब में जो जुमला है आप देखें, कैफल वलदू, कैफल वलदू, लड़का कैसा है, नहीं किस हाल में है, खैरियत पूछ रहे हैं कैफा। तो कैफा के साथ भी आप बिल्कुल आईना की तरह कर सकते हैं। कैफा के बाद आप कैफा हाजल वलदू कर लें, इसमें इशारा इस्तेमाल कर लें। कैफा के साथ ज़मीर इस्तेमाल कर लें, अंता, हुआ या हिया सब चलेगा। और इसी तरीके से आप कैफा के साथ इस्तेमाल कर लें इसमें मौसूल इस्तेमाल कर लें आप कैफा के साथ।
कैफल लजी मरीज़ा अमसी, कल जो बीमार हुआ था उसका हाल क्या है। इसमें मौसूल इस्तेमाल हो रहा है, अलम इस्तेमाल कर लें आप, कैफा ज़ैदुन या बकरुन या रशीदुन वगैरह, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब मिसालों में भी आइना की तरह कैफा भी खबर मुक़द्दम होगा और उसके बाद जो आ रहा है वो मुब्तदा मुअक्खर। अब कैफा के साथ आप फेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफा अकलता, आपने कैसे खाया, कैसे खाया आपने मतलब आपने बैठकर खाए या खड़े होकर खाए या जो भी। कैफा कराता, कैफा कतबता, आपने कैसे लिखा, कैफा खुलता, आपने कैसे कहा। ये सब फेल माजी आप ला सकते हैं, चाहें तो मुजारे भी ला सकते हैं। कैफा तजलिसु, आप कैसे बैठेंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे लिखेंगे, आप कैसे कहेंगे, मुजारे भी आ सकता है। आप मैं जो सेगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप एक तो सेगे बदल दें और अफ़आल यानी ये बदल दें और नए नए जुमले 5-5 जुमले कम से कम आप बनाएं, तभी आपके अंदर वुसअत पैदा होगी। अगर कुछ दुश्वारी हो रही हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आपको हमने पूरा इख्तियार दे रखा है। कैफा, जैसे आईना को हमने इस्तेमाल किया था शर्त के माना में, आईना तजलिस अजलिस, आप जहाँ बैठेंगे मैं बैठ, तो क्या कैफा भी शर्त के माना में आता है। कैफा तजलिस अजलिस, आप जैसे बैठेंगे मैं वैसे बैठूंगा। कैफा तकुल अकुल, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे कहूँगा। कैफा ताकुल आकुल, आप जैसे खाएंगे मैं वैसे खाऊंगा। तो नहवी हजरात इस सिलसिले में फरमाते हैं कि आता है, लेकिन ये कौल ज़ईफ़ है, मगर आता है, बोल सकते हैं आप, गुंजाइश है आपके लिए। तो बिल्कुल आप कैफा तक्तुब अक्तुब, जैसे आप लिखेंगे वैसे मैं लिखूंगा। कैफा तकुल अकुल, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कहूँगा। कैफा तक़रा अक़रा, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे मैं पढ़ूँगा। तो दो फ़ेल मुज़ारे हमको लाने हैं और उस वक्त ये कैफा शर्त के माना में होगा। तो ये आईना और कैफा के इस्तेमालात हमने आपको समझा दिए। आप इस पर 5-5 मिसालें बनाएं और हमारे पास भेजें। और फिर एक बार मैं याद दिला देता हूँ, अगर आप हमारी मश्क के मुताबिक चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छी अरबी लिखने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं और समझने वाले भी हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।